लैंग्वेज की बात करेंगे, HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की एंड बोटस्ट्रैप की। जैसे फिर अब थीम डेवलपमेंट का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे प्लग इन डेवलपमेंट के पे, जहाँ पे हमें और PHP की जरूरत पड़ेगी और बेसिकली थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी वो अपने थीम डेवलपमेंट में पड़ेगी PHP की, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और ठीक है। सो आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है आज से पहले? हेलो। हेलो। या आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है आज से पहले, मतलब कोई भी आप सारे पर्सन भी एक्टिव हो, जैसे जितने ज़्यादा आप एक्टिव होंगे उतनी ज़्यादा आप चीज़ों को सीखोगे। सो प्लीज एक्टिव। नहीं सर, प्रोजेक्ट मतलब वेबसाइट तो नहीं किया है, पर आई हैव डन a project like an Instagram I've created using JavaScript and React and Redux, and have created few more mini projects. ओके। सो आज ये कोर्स अपना ड्यूरेशन कोर्स का रहेगा, अपना जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा, लेकिन विद इन 1 मंथ वी कैन से दैट यू आर परफेक्ट इन वर्डप्रेस लाइक कस्टमाइजेशन पार्ट। You can customize any site and you can also develop a website from the Elementor or WP Bakery page builder. And for the section of the theme development, plugins development, you need to devote 3 months if you want to learn theme development and plugin development in WordPress also. Yeah. So I am sharing my screen. What's that? My screen visible to you? Yes. I mean, I don't know. Yes, now. Just a yeah, screen is visible to you all. विजिबल। या श्योर। सो फर्स्टली बात करेंगे इस कोर्स के अंदर जो आज की क्लास रहेगी उसमें बात करेंगे फर्स्टली व्हाट इज वर्डप्रेस, दे आर द सम फीचर ऑफ द वर्डप्रेस, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द दे आर द टू प्लेटफॉर्म, वन इज wordpress.com and another one is wordpress.org. So we will discuss one by one on both platforms, what the drawbacks and the advantage of each platforms .com and .org. तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस से। व्हाट डू यू मीन बाय वर्डप्रेस? Just a minute. So, what is WordPress? WordPress is a content management system. What do you mean by content management system? किसी को पता है? हेलो, किसी को पता है content management system क्या होता है? Yes, sir. Hello. Yeah, you can tell. किसी को content management के बारे में It is, sir. It's a computer software used to manage the creation, modification of digital content, like that. ओके। देखिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक टाइप का वर्डप्रेस में इनबिल्ट होता है, जिससे क्या करते हैं जो भी हम अपनी इमेज को डालेंगे उसमें इमेज अपलोड करेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे और उनको मतलब प्रॉपर वे में अरेंज करना उनको, दिस इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो बेसिकली अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट में हम इमेज डालते हैं, टाइटल डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, उनका मतलब कंटेंट डालते हैं, तो उनको एक प्रॉपर वे में अलाइन करना या फिर उसको कह सकते हैं कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना, दिस इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, या एनी डाउट? No, sir. Next is WordPress is created in PHP, MySQL and JavaScript. So PHP is the backend language, server side language you can say that, and MySQL is the database.
on which the WordPress is run. Okay, and JavaScript like we can say that action based language, client side, like performing the action, like when you click the sign up button, then pop up will be show. This kind of things will be happen by the JavaScript. We can say that like when you click on a button, it shows a message like this is your, so some kind of a message on this will be done by JavaScript. Okay, so this software is free and open source. So open source के बारे में किसी को पता है क्या होता है? What, sir? ओपन सोर्स के बारे में, ओपन सोर्स, व्हाट इज ओपन सोर्स? सर जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है. It's free basically, sir, right? या इट इज फ्री बट व्हाट इज ओपन सोर्स? It's like it does not have any like we can download it from anywhere. Like if we take example of Google Chrome, it's an open source, so we can download it from anywhere. Okay, basically you can Like say that we have, yeah, like we have all the rights to use it, right? yeah. So open source में include होता है, we can say that there are a lot of the developers which are contributing on WordPress for creating it better performance. Okay, so open source में हम कह सकते हैं कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी आप वर्डप्रेस को तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, और इसमें आप अपना खुद का कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, इसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए आप यू कैन कंट्रीब्यूट. दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स. सो बेसिकली बात करें तो इसमें जो वर्डप्रेस है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है. उसके फ्यूचर की हम बात करेंगे आगे, मतलब अभी 10 मिनट में. क्यों इसकी पॉपुलैरिटी वर्डप्रेस की बढ़ती जा रही है? क्योंकि जिससे ज़्यादा पीपल इसको लॉग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ज़्यादा पीपल से. दिस काइंड ऑफ द सब ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो अपनी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है. एंड you can also create a simply decent website in just 10 to 15 minutes by using the WordPress. So basically मैं बात करूँ तो PHP जो अपना WordPress है उसमें अपनी 5 टाइप की लैंग्वेज हम कह सकते हैं इसमें, और 4 लैंग्वेज यूज होगी मेनली. वन डाटाबेस यूज होगा, 4 अपनी लैंग्वेज यूज होगी. तो आपको कुछ पता है लाइक PHP किसके लिए काम आती है? MySQL, HTML, CSS, JavaScript. Yes, sir. या सबसे पहले हम I think PHP की ये शुरुआत. सर्वर साइड के लिए यूज होती है लैंग्वेज. या सर डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए PHP यूज करते हैं सर, और जो बैकएंड जो भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए PHP का यूज करते हैं. ओके, तो हम PHP की बात कह सकते हैं सिंपल से यहाँ पे कि जो अपनी वर्डप्रेस के रूप में जब हम बात करें PHP को हम क्यों यूज करेंगे. उसके लिए जितने भी अपने वर्डप्रेस के प्लगइन्स होते हैं, वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स होते हैं उनको हम PHP में लिखते हैं. जैसे किसी ने देखे प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स देखे आपने किसी ने? सर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाता है. ओके, सो मैं क्या दिखाता हूँ आपको. और फिर अपना डाटाबेस आता है MySQL. MySQL का काम क्या होता है? सर MySQL से क्वेरी लिखते हैं सर, क्वेरी के लिए यूज करते हैं सर उसको. क्वेरी के लिए. ओके, सो एनी मोर? एनीवन? Anyone next? Yes, sir. Yeah. MySQL, sir, I think creates a database Okay. for storing and manipulating data. अब देखिए MySQL है जो अपना डाटाबेस है, अपना SQL एक डाटाबेस होता है, MySQL अपना डाटाबेस होता है ना. These are the two different terms. Basically MySQL database यूज किया जाता है. डाटाबेस यूज किया जाता है कि हम we can store our information like
और जो भी हम ऑपरेशन अपने वर्डप्रेस में परफॉर्म करेंगे उनको हम एक डाटाबेस में स्टोर कर सके, उसके लिए हम अपना माइस्क्यूएल डाटाबेस का यूज करते हैं वर्डप्रेस में इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, जैसे ये दिख रही है और डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाटाबेस यूज फॉर स्टोरिंग वेबसाइट इंफॉर्मेशन। जो भी आप वेबसाइट में जो भी आप ऑपरेशन या There is a doubt that what is the basic difference between this SQL and MySQL? basically consider बहुत ज़्यादा database, लेकिन one is server and another is MySQL. In which we can say that like SQL, both are there are some advantage and disadvantage of SQL and MySQL. Okay, we can say like when we use the coding section, HTML, CSS, JavaScript design kind of the portion, so we can also use the SQL section. I will just a minute, I'm showing the Okay. just a minute, I'm showing you. That is good. जो अपना प्लगइन्स का सेक्शन है वो इस टाइप के अपना प्लगइन्स होता है यहाँ पे। इसमें मतलब क्या होता है, जैसे आपको एक क्लासिक एडिटर लगा दो, क्लासिकल एडिटर इसमें हो जाता है। मतलब क्लास अलग अलग टाइप का, तो लाइक क्लिक टू चैट, ये अपना व्हाट्सएप की फंक्शनलिटी को ऐड करता है। एलिमेंटर हो गया अपना पेज बिल्डर हो गया, जैसे हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। फिर अगला आता है वन क्लिक डेमो इंपोर्ट। ओके, और इसमें मतलब कोई भी अपना एक पर्टिकुलर जो टेम्पलेट होता है उसको इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, प्लगइन्स का होता है। और जो आप एसक्यूएल एंड माईस्क्यूएल की कह रहे हो, उसमें एसक्यूएल की साइट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ होती है अपनी, एसक्यूएल और माईस्क्यूएल नेट के। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एसक्यूएल होती है वो अपनी क्वेरी लैंग्वेज होती है, और माईस्क्यूएल अपना रिलेशनल डाटाबेस होता है। जानते हो आप रिलेशनल डाटाबेस के बारे में? हाँ जी। और डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस के बारे में जानते हो? हाँ, थोड़ी बहुत तो है। हाँ, तो बेसिकली एसक्यूएल अपनी क्वेरी लैंग्वेज होती है और माईस्क्यूएल अपनी रिलेशनल डाटाबेस होता है। जो कि एसक्यूएल टू क्वेरी डाटाबेस, यानी माईस्क्यूएल परफॉर्म होता है, जो एसक्यूएल होता है उसको एक क्वेरी मतलब एसक्यूएल की जो क्वेरी है उस पर परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है माईस्क्यूएल को। ओके। और एसक्यूएल को आप यूज कर सकते हो कि जो भी डाटा आपने डाटाबेस में स्टोर किया है, कोई भी मतलब पर्टिकुलर आपने इन्फॉर्मेशन की, आपकी यूजर आपका आई नेम, आपका क्लास, दिस काइंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की है डाटाबेस में, तो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उसमें कुछ अपडेशन करनी है वो कर सकते हो आप एसक्यूएल की तरफ से। ओके। एंड माईस्क्यूएल का काम होता है कि कोई भी आपने डाटा पहले से उसमें स्टोर किया हुआ है, तो कोई भी डाटा आपने पहले से उसमें स्टोर किया हुआ है, तो उस डाटा में आप अपडेशन कर सकते हो इस टाइप से। ओके और सर। कोई पर्टिकुलर मैनर में आप अरेंज कर सकते हो। लाइक आपने सिंपल से एक बार डाटा को अरेंज कर दिया, लाइक ऑल क्लास का डाटा एक बार आपने डाल दिया उसमें, लेकिन उसको एक बार पर्टिकुलर वे में मैनेज करना, दिस काइंड ऑफ द वर्क बाय डन माईस्क्यूएल। ओके, कोई डाउट अभी फिलहाल? Sir, can we say MySQL is a programming language? हाँ नहीं, इट्स अ डाटाबेस। जब Database management. या जब हम बाद में बात करेंगे, लाइक वी कैन से दैट आफ्टर द 3 to 4 क्लासेस डाटाबेस की PHP MyAdmin, you know that PHP MyAdmin section. Yes, sir. Inside server Zen is XAMPP server, sir. हाँ नहीं, या सो इसमें हम बात करेंगे जब हम उस 3-4 क्लास के बाद उस सेक्शन पे पहुंचेंगे, तो हम एक खुद का डाटाबेस भी क्रिएट करेंगे। और कोई भी प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, कोई भी थीम आप इंस्टॉल करते हो, कोई भी आप इमेज अपलोड करते हो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, वो सब चीज़ होगी वो आपको डैशबोर्ड पे मतलब आपको डाटाबेस में दिखाई देगा। वो दैट वन इज माईस्क्यूएल डाटाबेस। ओके, सो अभी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में धीरे धीरे नॉर्मली स्टार्ट चीज़ होगी, और उसके बाद जैसे ही हम 3-4-5-6 वी कैन से दैट 30 क्लास मूव ऑन कर लेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें बेसिकली कैन से दैट, यदि आप प्रैक्टिस ढंग से करते हो तो इसकी।
तो अगली लैंग्वेज आती है अपनी HTML। HTML तो जानते होंगे आप सभी। Yes. सो बेसिकली HTML का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो, वेब पेज होती है, और वेब मतलब एक आप वेबसाइट, पता है आपको क्या होती है वेबसाइट? व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट? व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट? कोई जानता है वेबसाइट क्या होती है? Collection of web pages related to content. ओके, तो बेसिकली वेब पेज का कलेक्शन होता है, राइट है। लेकिन जो वेब पेज होता है, उस वेब पेज को जब हम मतलब उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देते हैं, उसको हम कहते हैं HTML। लाइक आप किसी भी एक पर्टिकुलर वेब पेज का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसको हम HTML कहेंगे, HTML से देंगे, ठीक है। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो इसमें हम बात करें, यू नो द अबाउट द लाइक व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Yes. या कैन यू टेल मी? So basically, HTML is, according to my knowledge, that talking about HTML, it is basically used for structuring the I web want to pages. ask like what is markup language and what is programming language? Programming basically includes the coding sections, Okay. and markup language is where we use various links and all to create a website. क्या हम इसमें Yeah. HTML में अपनी जो अपनी मार्कअप लैंग्वेज है HTML, उसमें हम कोडिंग का यूज नहीं करते? We do coding, but yes, उसमें एक्स्ट्रा लिंक्स वगैरह स्ट्रक्चर करते हैं, वेब पेज को स्ट्रक्चर करते हैं हम लोग। बेसिकली HTML जो अपनी मार्कअप लैंग्वेज और जो डिफरेंस Markup language is basically used for the designing purpose, and programming language is used for the backend, like PHP, and PHP is mainly used for the what we say that sorry, I forgot. Okay. No, sir. I think markup language defines a set of rules, and programming language provide a set of commands and syntax. ओके, या सही। सो बेसिकली जो अपनी मार्कअप लैंग्वेज होती है, वो जो अपनी मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो भी कोई अपनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देते हो आप किसी भी पर्टिकुलर, बेसिकली काम ये होता है कि मार्कअप, उसमें मार्कअप लैंग्वेज में जो हम लिखेंगे वो आपका मशीन अंडरस्टेबल भी होना चाहिए और अपना ह्यूमन अंडरस्टेबल भी होना चाहिए। और उसका मतलब जो इंसान जो उसको पढ़ रहा है, यूजर पढ़ रहा है, उसको इजीली अंडरस्टेबल हो जानी चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है कि एक कमांड्स प्रोवाइड करता है अपने को, लाइक एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को मूव करने के लिए, या फिर कोई भी डाटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेशन करने के लिए, उसके लिए अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, Yes, sir. या सो डाउट हो कोई पूछ लेने के साथ के साथ। फिर आगे चलते हैं, आगे आते हैं CSS। CSS आपको पता होगा क्या होती है CSS? हाँ जी, सो कोई बता सकते हैं? मैं बता रहा हूँ। कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, सर इसके थ्रू हमने जो भी एलिमेंट्री किया था HTML के लिए, हम उनको एक प्रॉपर वे में डिजाइन कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, और कलर्स जो भी लुक होता है सर वो CSS के थ्रू आता है। ओके, सो I think CSS is a simple mechanism for adding style, fonts, colors, spacing to web documents. ठीक है। तो मतलब जो भी आपने एक वेब पेज बनाया है, उस वेब पेज पे आप पर्टिकुलर कोई भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कोई प्रॉपर्टी, मतलब उसको एक डिजाइन करना चाहते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब जो अपनी ह्यूमन के एक इंटेक्शन बने, जैसे कोई भी आपका यूजर है और उस वेबसाइट का कॉल था, तो इंटेक्शन बने, उस टाइप के इंटेक्शन को डेवलप करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली CSS की जब हम बात करेंगे तो अपनी ये 3 टाइप की CSS आती है, वो हम जैसे अपनी CSS के पोर्शन में जाएंगे हम डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट किसी को नॉलेज हो? सर बिहेवियर सेट करने के लिए वर्क करते हैं वेब पेज का।
ओके सो क्वेरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। JavaScript is a text-based programming language used to both on client side or server side that allows you to make web pages interactive. देखिए इसमें जावास्क्रिप्ट की यदि मैं बात करूँ तो इसमें सिंपल सी बात कहती है, कोई भी आपकी वेबसाइट में यूजर आता है तो जो वेबसाइट में आपकी वेबसाइट पे जो यूजर आएगा वो आपकी वेबसाइट से कितना इंटरेक्ट हो पाता है, आप मतलब उस अपनी वेबसाइट में कौन कौन सी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे कि जो यूजर का जो इंटरेक्शन है वो आपकी वेबसाइट की प्रति थोड़ा मतलब उस वेबसाइट पे उसका बाउंस रेट ना बढ़ाए, उस वेबसाइट का कैसा रेट। मान लीजिए कोई भी आप पॉपअप शो करना कोई भी चीज़ वो सारा अपना परफॉर्म करता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। लाइक वी कैन से दैट जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके पास एक पॉपअप के रूप में आता है कि आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आप कंटिन्यू करने के लिए दिस काइंड ऑफ ओके बट मतलब दिस काइंड ऑफ मैसेज। तो जो मतलब एक्टिविटी होती है और जो इंटरेक्शन करता है यूजर को आपकी वेबसाइट पे रोकने के लिए वो हम जावास्क्रिप्ट पे परफॉर्म करते हैं सब चीज़, ठीक है। Yes, sir. रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एंड इंटरेक्टिविटी, मतलब जो जो आप अपनी वेबसाइट पे एक्शन लगा रहे हैं और आपका यूजर जो इंटरेक्शन है उस पर मेन फोकस है इसका, ठीक है। सो कोई डाउट हो अभी तक? नो। सो बेसिकली मैं बात करूँ वर्डप्रेस की बात आती है, तो वर्डप्रेस होता क्या है वो हमने बात कर लिया। एक CMS सॉफ्टवेयर होता है, अब इसको कहते हैं कि हम इसको होस्ट कहाँ कर सकते हैं। पहले एक बार हम इसके फ्यूचर की बात कर लेते हैं कुछ, जस्ट मिनट। देखिए सबसे पहले इसका फ्यूचर आता है, अपना फ्यूचर आता है इसका सिंप्लिसिटी। क्या आता है? सिंप्लिसिटी। कुछ बता सकता है सिंप्लिसिटी होता क्या? easy to use. ओके एनीवन? एनी मोर जो कोई बता सकता है? So because of their lots of plugins are available, with the help of plugins we can easily design a good web page, like design of forms, and there are a lot of element like Elementor and Page Builder are also available, and pre-designed templates are also available there. सिंप्लिसिटी की जब मैं बात करूँ तो सिंप्लिसिटी में आप सिंपल से कह सकते हो कि आप कोई भी वेबसाइट आप डेवलपमेंट करते हो, लाइक आप कोडिंग और जब HTML या CSS से बनाते हो तो एक पर्टिकुलर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप वर्डप्रेस में बनाते हैं तो उसकी जो CSS फाइल होती है आपको मतलब वी कैन से दैट हर डिवाइस के अकॉर्डिंग जब आप पर्टिकुलर कोडिंग में कोड करते हो तो पर्टिकुलर कोडिंग में आपको हर CSS फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, मतलब मोबाइल के अकॉर्डिंग, टैबलेट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आपको वो देनी पड़ती है स्टाइल की, पर्टिकुलर स्टाइल देनी पड़ती है। लेकिन वर्डप्रेस के केस में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या होती है वो CSS की स्टाइल वर्जन्स होती है जिसके कारण ऑटोमेटिक और रेस्पॉन्सिव होती जाती है मोबाइल्स में, डेस्कटॉप में और टैबलेट्स में, ठीक है। तो इसमें आपका जो वेबसाइट डेवलपमेंट का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है देन कंपेयर ऑफ द कोडिंग सेक्शन, ठीक है। कोई डाउट हो इसमें? कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? देखिए जैसे आप बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क सुना आपने? हाँ। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में आपके पास वी कैन से दैट मोबाइल रेस्पॉन्सिव, डेस्कटॉप रेस्पॉन्सिव और टैबलेट रेस्पॉन्सिव। बाय डिफ़ॉल्ट अपनी क्या होती है CSS फाइल प्रेजेंट होती है जो हम लिंक करते हैं अपने HTML के कोड में, ओके। राइट। यस। तो उससे क्या होता है जो अपना HTML का कोड है वो अपना रेस्पॉन्सिव हो सके तीनों डिवाइस के कोड में, ठीक है। इसी टाइप से वर्डप्रेस में भी अपने पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है जिसके कारण वो रेस्पॉन्सिव हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो अपना पोस्ट को मतलब जो अपनी पोस्ट लिखेंगे इसमें उसको पब्लिश करना आपका इजी होता है, ठीक है। इस टाइप से इसमें होता है सिंप्लिसिटी, यानी आपकी मतलब इसमें जो आपको जो चीज़ आपको चाहिए जो उसमें आप परफॉर्म करने चाहते हो एक्शन को वो आपको पहले से उसमें वर्जन्स होते हैं। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर हम कह सकते हैं इसमें सिंपल कस्टम आपको दिखाई देते हैं। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी इसमें आपकी प्रोवाइड होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक बार जैसे हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ मूव ऑन करेंगे उस टाइम, ठीक है।
Okay. Yeah. So second one is flexibility. और पता है फ्लेक्सिबिलिटी में बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम इसमें किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, इसमें आपको ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप केवल एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो या आप केवल एक स्कूल वेबसाइट बना सकते हो। इसमें आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, यानी हर प्लेटफॉर्म के लिए फ्लेक्सिबल है, वी कैन से दैट। ठीक है। और फिर अपना पब्लिशिंग ईच, यानी इसमें पब्लिश करने के लिए आप सिंपल जो भी आप पेज करोगे, पोस्ट लिखोगे, वो अपनी सिंपल वन क्लिक से आप पब्लिश कर सकते हो इसको। और इसमें जैसे अपने पब्लिशिंग टूल होगा वो हम सारे बाद में बात करेंगे, टाइम की शॉर्टेज के कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे उसकी। फिर अपना यूजर मैनेजमेंट, इसमें आप यूजर को मैनेज कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर जो आपका, मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट में आप 4 पीपल काम कर रहे हो, तो आप 4 को लोकेट कर सकते हो कि आपका एक जो पर्सन है, पहला यूजर है वो कंप्लीट डैशबोर्ड को हैंडल करेगा, दूसरा यूजर केवल कंटेंट के लिए हैंडल करेगा, और तीसरा यूजर होगा वो अपना एसईओ के लिए करेगा। उसमें आप पर्टिकुलर डिवाइड कर सकते हो यूजर को। मीडिया का मैनेज कर सकते हो, फुल स्टैंडर्ड कंप्लेंट्स आता है, बाद में हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, फ्यूचर की। अब देखिए बात करूँ इसमें, अपने पास वर्डप्रेस के 2 सॉफ्टवेयर आते हैं, एक आता है wordpress.org, दूसरा आता है wordpress.com। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए, और ये अपनी wordpress.com है और दूसरा अपना है wordpress.org। इसमें क्या होता है, आपको कंप्लीट जो वर्डप्रेस की फाइल होती है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप इस पर गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही आपके पास यहाँ पे वर्डप्रेस की फाइल हो जाएगी डाउनलोड। दिस वन इज डाउनलोड वर्डप्रेस। तो ये मतलब आपका कस्टम के लिए होता है कि आप इसमें खुद की आप डोमेन ले सकते हो, इसमें खुद की आप होस्टिंग ले सकते हो। मतलब इसमें जो कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल आपका यूजर का कंट्रोल होता है। जितना भी आप कंट्रोल करोगे यूजर कर सकते हो, उसमें खुद की कौन सी एड गूगल एडसेंस लगानी है या फिर नहीं लगानी, सारी कंट्रोल इसमें होता है। इसमें क्या होता है, wordpress.com में हम बात करें, इसमें आप सिंपल एक अकाउंट बनाते हो आप ऑनलाइन। इसमें अपनी डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें जो अपनी wordpress.org होता है उसमें अपनी वेब होस्टिंग आपको खुद की लेनी पड़ती है, यानी आप वर्डप्रेस वाले होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते, और डोमेन भी आपको इसमें खुद की लेनी पड़ती है जो wordpress.org है अपना। ठीक है, और wordpress.com की जब बात करते हैं तो उसमें वेब होस्टिंग और डोमेन दोनों क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ओके, अब डिजाइन की बात करूँ, जो थीम है उसमें आप wordpress.org में फुली कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइजेबल का मतलब होता है आपको किसी को क्या होता है? No. कैन यू टेल मी, लाइक आपने कभी थीम्स को कस्टमाइज की हो इस टाइप से? Customize in the sense? और मीन्स आपने वर्डप्रेस को मीन्स लिखना था आप वर्डप्रेस पे? मैंने मतलब यूज तो मतलब एक दो बार किया था मतलब वर्डप्रेस को, तो वो स्टार्टिंग में ही था, तो फिर थोड़ा बहुत मैंने मतलब वहां पर लिमिटेड वो थे थीम्स थे उसके। सो देखिए, कस्टमाइजेबल का बात करूँ तो इसमें मान लीजिए थीम होती है अपनी, कोई भी वर्डप्रेस में थीम को आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें आप उसकी अपनी टाइपोग्राफी यानी उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड हेडर, फुटर, दिस काइंड ऑफ, मतलब इसमें कंप्लीट आप चेंज कर सकते हो इसमें। ओके, और लेकिन जब अपनी wordpress.com की मैं बात करूँ तो उसमें जैसे अपना फूटर को चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशन लगा दी गई है किसी भी पर्टिकुलर थीम के ऊपर कि भाई आप इसके इस पोर्शन को चेंज नहीं कर सकते, आप इसके इस पोर्शन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये अपना .com की बात आती है। इसी तरह प्लगइन्स में भी अपना दोनों चीज़ सेम होती है कि इसमें फुल कंट्रोल होता है, उसके पास आपके पास लिमिटेड होता है। और एक आता है बैकअप का सेक्शन।
बैकअप का सेक्शन पता है आपको? बैकअप आपने कभी मान लीजिए किसी साइट का लिया हो या फिर आपको कुछ आइडिया हो बैकअप के बारे में? बैकअप बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है कि डेटा जो होता है वो मतलब स्टोर जहाँ होता है मतलब मेन उससे उसके अलावा भी कहीं ना कहीं स्टोर होना। और देखिए इसमें बैकअप का मतलब होता है लाइक आपने कोई भी एक वेबसाइट क्रिएट की है, उस वेबसाइट को आपने क्रिएट की है, इन फ्यूचर यदि कोई भी आपकी जो थीम होती है, आप जो वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हो थीम को, प्लगइन्स को, तो उसमें क्या होता है जैसे अपडेशन आती है, अपडेशन करते हो किसी भी चीज़ को, या फिर कोई आपका एसईओ कर रहे हैं उसका वर्डप्रेस वेबसाइट का, या फिर हम उसमें बात करें कोई भी आप उसकी चाइल्ड थीम बना के उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, उसके कारण क्या हो जाता है साइट अपनी जो होती है वो कई बार क्या हो जाती है, मतलब उसमें साइट के कोड पे हार्म पहुंच जाता है जिसके कारण जो साइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो जब भी आप किसी भी साइट पे किसी भी अपनी चीज़ किसी भी साइट पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका एक बैकअप आपको लेके रखना है, क्योंकि बैकअप का काम होगा जैसे आपकी ओरिजिनल साइट पे जो आपका कोड इफेक्ट किया है तो उसको हटा के आप अपनी जो आपने बैकअप लिया था किसी भी साइट का उसको आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, वो साइट आपकी दोबारा से रिडिजाइन हो जाएगी उसी टाइप में। तो बैकअप का हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको खुद ही इसमें बैकअप लेना पड़ता है wordpress.org में, लेकिन .com में आपका बैकअप उनकी तरफ से ही आपको इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो अपनी .org की जो सिक्योरिटी है वो भी अपने को खुद करनी पड़ती है, लाइक कोई भी अपनी जो उस वर्डप्रेस वेबसाइट को हैक नहीं कर सके या फिर उसमें कोई भी अपना कोड नहीं डाल सकते, मिसलेनियस कोड फाइल ऐसा कुछ, मतलब सिक्योरिटी भी अपने को देखनी पड़ती है wordpress.org में, लेकिन .com के केस में सिक्योरिटी आपको wordpress.com वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये इतना इसमें बात करें, लेकिन जब इसमें वर्डप्रेस ये अपना फ्री है, wordpress.org फ्री है अपना, लेकिन जब हम wordpress.com की बात करेंगे ये अपना पेड होगा। इसमें मतलब आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, थीम इंस्टॉल करना है, आपको सबके लिए एक प्लान लेना पड़ता है इनका। सो अभी के लिए जो बेस्ट की मैं बात करूँ तो बेस्ट अपना हो सकता है wordpress.org अपना बेस्ट हो सकता है। तो देखिए और इतने में कोई किसी को कोई डाउट हो, मतलब जब तक इसमें बात की आपने? मुझे एक चीज पूछनी थी मतलब ये जो wordpress.org है हाँ वहां पर वो डोमेन नेम पूछता है, मतलब डोमेन नेम हमें खरीदना पड़ता है, राइट? हाँ और जो वही wordpress.com है वहां पर वहाँ फ्री है। हाँ यस। सो देखिए उसमें क्या होते हैं लिमिटेशन होती है, जो अपनी wordpress.com होता है उसमें कुछ लिमिटेशन होती है। आप गूगल एडसेंस मान लीजिए आप ब्लॉग वेबसाइट बनाते हो, एक आप .org में बनाते हो, दूसरी आप बनाते हो .com पे, ठीक है। तो .com पे पास अपने पास लिमिटेशन होगी कि आप उसमें आप खुद की एड्स नहीं लगा सकते, उसमें वर्डप्रेस के लिए एड्स लगेगी, और उसमें ये होगा कि जो भी पर्टिकुलर वर्डप्रेस की तरफ से ऐड चल रही है उसको आप हटा नहीं सकते, लेकिन wordpress.org में आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। और सेकंड में बात करूँ इसमें कि जो अपना wordpress.com होता है उसमें जो फूटर का होता है वो लिखा होता है क्रिएटेड बाय wordpress.com, तो आप उस टेक्स्ट को भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन wordpress.org के केस में आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो इसमें हम लोकल होस्ट का यूज़ करके हम वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट करेंगे, मतलब इसमें आपको कोई भी डोमेन से होस्टिंग लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो उसके बाद हम बात करेंगे कि आप क्लाइंट्स के लिए जैसे काम करोगे तो उनके लिए आपको होस्टिंग या डोमेन लेनी पड़ेगी। ओके। जैसे आप मान लीजिए आपका लोकल होस्ट होता है, एक होता है लोकल होस्ट, दूसरा होता है लाइव सर्वर, पता है आपको डिफरेंस दोनों के बीच में? लोकल होस्ट है? लाइव सर्वर नहीं इतना नहीं पता, बट हाँ लोकल होस्ट में कुछ वो तो पता है, एग्जाम्प और ये सब में यूज होते हैं। लोकल होस्ट बेसिकली हम बात करें तो जो आप अपने खुद के पीसी में, मतलब अपने खुद के लैपटॉप या खुद के पीसी में उसको देख सकते हो, यानी इनविजिबल टू द अदर, मतलब उसको कोई भी पर्टिकुलर जैसे अपने एक एक्सेस जो यूआरएल होता है, आप कोई भी लोकल होस्ट में कोई फाइल है उसको रन करोगे तो अपना एक गूगल पे यूआरएल आएगा, उस यूआरएल से आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, आप
देख सकते हो, मतलब अपने खुद के पीसी में। लेकिन जब उस यूआरएल को कोई अनदर पर्सन एक्सेस करना चाहता है तो उसको नहीं कर सकता। लेकिन जब अनदर पर्सन उसको एक्सेस करना चाहता है, आप उसको दिखाना चाहते हो, तो अपने पास वेरियस टूल आते हैं। एक आता है अपने पास एनजीरो के नाम से, लेकिन दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी इज नॉट अलाउड इन दिस केस, बिकॉज ये कुछ हैकिंग के एक्टिविटीज में आ जाती है, तो इसके अलाउड नहीं करेंगे। आप एनजीरो नाम का आता है, जिससे अपनी लोकल पीसी होता है उसको आप मतलब लोकल पीसी में जो आप लोकल होस्ट में जो काम कर रहे हो उसको आप दिखा सकते हो किसी भी दूसरे पर्सन से। और लाइव सर्वर में होगा कि आप उस पर्टिकुलर यूआरएल से आपका कोई भी यूजर है, कोई भी आपका एक्सेस कर सकता है उसको, कोई भी पीपल आपका एक्सेस कर सकते हैं उसको। इतना। कोई डाउट हो यहाँ तक? No. एनीवन? किसी को? हेलो सर। हाँ सर मैं एक बार डोमेन और होस्टिंग कैन यू रिपीट अगेन? डोमेन एंड होस्टिंग, क्या हो गया इसमें? डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग। मान लीजिए डोमेन क्या होती है। डोमेन का काम होता है कोई भी आपका एक पर्टिकुलर नाम, लाइक आपका नाम है कुछ भी, लाइक मैं मान लूँ, नाम क्या आपका? रेशमा। रेशमा। सो आप एक रेशमा नाम से एक आपने रेशमा नाम को सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने उस नाम को एक बुक किया, मान लीजिए कि ये रेशमा नाम को मैं अपनी ऑनरशिप में ले रही हूँ कि ये जो अपना नाम है इसको कोई और नहीं ले सकता। आपने एक बार बुक कर लिया तो उस पर्टिकुलर नाम को रेशमा.com है, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नाम की ऑनरशिप लेना अपनी डोमेन होती है, और उस पर्टिकुलर नाम की जो आपने ऑनरशिप ली है उसको आप किसी भी एक यानी विजिबल करना, यानी उसको जैसे आप डोमेन लेते हो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता यूजर पे, ठीक है। और होस्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो उसको सर्वर पे इंक्लूड करता है, यानी कोई भी अदर यूजर होता है उस नाम को एक्सेस कर सकता है यदि आप उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को आप कनेक्ट करते हो किसके साथ, बाय यूजिंग द आईपी एड्रेस होस्टिंग के साथ आप कनेक्ट करते हो। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बाद में क्लास में, कैसे आप डोमेन नेम को परचेज करें और कैसे आप होस्टिंग पे उसको कनेक्ट करें। सर मेरा लोकल होस्ट को लेके डाउट है। हाँ सर पहले तो हमें लोकल होस्ट में जब हम कोई और देख ही नहीं सकता तो यूज क्या है लोकल होस्ट में हम वेबसाइट क्यों क्रिएट करें? हम डोमेन एंड होस्टिंग लेकर ही क्यों नहीं वेबसाइट बनाएं? देखिए वो है, यदि आप मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। Hello, please, all should please speak English, please. I am from Kerala. और Okay. जब भी व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, जब भी आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हो और देन यू कैन यूज लोकल होस्ट, because there will be no cost in the local host when you work for the clients, right? We can say that then you will definitely use the live server. Okay, sir, just for the practice purpose, we are using localhost, right? Yeah. Sir, can we create multiple websites in localhost at the same time? Yeah. WordPress also know the multi-site feature, like we said that. This is in the Sir, future. Sir, for now we can create only one website, or we can use we can create multiple websites. We can also create multiple website with a multiple folder. Like we are creating 3 website like ABC. Okay. Like ABC 3 वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो so the suppose वेबसाइट में first website name is A, second one is B, and third one is C. Okay, so for all the 3 website we need to create a different folder. And okay, but we can create multiple. Just we need to create multiple folders. Yeah. But we can create multiple websites. Right? Yeah, and WordPress also a functionality that is multiple site functionality. From the multiple site functionality, we can also create the multiple site on the only one folder. Means, okay. Suppose you create the 4 website in the multi-site. When you allow the multi-site, जब भी कभी आप multi-site को allow करोगे, एक फंक्शन होता है multi-site फंक्शन नाम का, और उस मल्टी-साइट फंक्शन नाम को अलाउ करोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर फोल्डर पे आप कितनी भी वेबसाइट पे रन कर सकते हो। लाइक इसमें डिफरेंस होता है, मान लीजिए आप 4 फोल्डर रख के बनाते हो तो आपको हर फोल्डर पे अलग अलग प्लगइन्स और इंस्टॉल करने पड़ेंगे, प्लगइन्स थीम हर पे अलग अलग। लेकिन जब उनका एक पर्टिकुलर फोल्डर पे आप उसको नेटवर्क सेटअप करते हो, नेटवर्क सेटअप के एक टाइम आते हैं मल्टीपल साइट में, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें मतलब एक
प्लगइन्स को आप एक साथ सारी साइट में क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। वो मल्टी साइट का कंसेप्ट होता है जो हम बाद में बात करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। Okay, so this option is available in localhost or live host, और or is available? बहुत Okay. सो बेसिकली लोकल होस्ट तो आपको प्रैक्टिस के लिए, लाइक जैसे आप बिगिनर हो तो आप एक क्यों आप मनी स्पेंड करें आप अपने मनी को किसी भी होस्टिंग पे डोमेन के लिए, तो उसके अल्टरनेटिव आपका लोकल होस्ट बनाया गया है। Okay. और कोई डाउट हो आपका? Sir, if we want to show the whatever we did in our local host, how we can show that to others? क्या कैन यू रिपीट अगेन? Sir, like I have created a website in localhost, ओके but I want to show it to someone. Like I want to show it that this I have done in my localhost. So, is there any URL which we can share so that other one can see what we have done? you can migrate the site from the local host to the live server, and also the some alternative like team viewer, this kind of the viewer you can send. Okay. Yeah, Okay. this will be not possible to show the live show the website on the local host to the user. Okay, sir. Got it. Thank you. You can means you can migrate the migrate from local host to live server. Okay. Yeah. So और कोई डाउट हो? और किसी का कोई डाउट है अभी तक यहाँ तक? No. ठीक है, सो इसमें जो क्लास है और जैन को अगर कंटिन्यू करना चाहोगे क्लास को, या फिर कल डिस्कस करें बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है? हेलो सर। या सर जब हम थीम चेंज करते हैं तो थीम चेंज करने के बाद जो पहली वाली थीम में हमारा डेटा स्टोर हुआ होता है, फिर उसका बैकअप जो आता है वो बैकअप उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहली वेबसाइट में था। उसके ऊपर थोड़ा वो कोडिंग वगैरह लिखा होता है। कैन यू रिपीट अगेन? हेलो या कैन यू रिपीट अगेन? सर, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हम थीम चेंज करते हैं ओके तो थीम चेंज करने के बाद जो हमारा बैकअप होता है वो उस तरीके से नहीं शो होता थीम के साथ जैसे हमें पहली वाली थीम के साथ होता है। उसके साथ कोडिंग और कुछ लाइंस जुड़ी होती है। ऐसा तो कुछ होता नहीं उसमें। सर हुआ है मेरे साथ कई बार, मैंने जैसे वर्क कर रही हूँ मैं तो होता है इसमें देखिए पेजेस। हाँ कैन यू क्या? सर पेजेस में जैसे हमारा पैराग्राफ होता है, जैसे कोई भी पेज का पैराग्राफ होता है तो Okay. उसके ऊपर ऐड होके आ जाता है कोडिंग। ऐसा कुछ है नहीं, थीम का केवल एक अल्टरनेटिव ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई भी जितनी भी पर्टिकुलर थीम होती है उनकी सबकी फंक्शनलिटी अलग होती है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर थीम पे जब आप वेबसाइट बना रहे हैं उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं दूसरी थीम के ऊपर, उसमें कोई भी लिमिटेशन आपके पास नहीं होती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई थीम ऐसी हो जाती है जिसके अंदर लिमिटेशन ज़्यादा होती है और फंक्शनलिटी कम होती है, उस केस में जो अपना कंटेंट होता है वो ओवरराइड कर सकता है। लेकिन जब हम थीम को चेंज करते हैं केवल उसमें आपका फॉन्ट का चेंज हो सकता है, आपकी कह सकते हैं उसमें फॉन्ट फैमिली और एक जो साइज अपनी वेबसाइट का वो कम हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोड आपका लिखा आ जाएगा, उसमें ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होती। ओके सर। या सो अगर कोई लिमिटेशन तो आप दिखा सकते हो एक बार। और कोई डाउट हो किसी का? एनी डाउट है? सो कंटिन्यू करें या फिर क्लास को एंड कर दें आज? Sir, what we are going to learn in this whole course, like, are we going to learn how to improve score in GT Matrix, Page Insight? All this will be covered in this course, or how to create a plugin, or there is something plugin? Just a minute.
My screen visible to all of you? Not yet. Just yeah, now No, sir. Yes, it's visible, but it's showing Not. you are presenting to everyone. yeah, just a minute. So Sir, your screen is not visible yet. I think you must exit and then enter, because I'm able to see his screen. Okay, let me try that. so now is screen visible to everyone, right? Yes, sir. Yeah. सो देखिए जो कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा, कल हम अपने लोकल होस्ट में वर्डप्रेस को सेटअप करने की बात करेंगे क्योंकि हाउ कैन यू सेटअप आवर वर्डप्रेस इन लोकल होस्ट. ओके, आफ्टर दैट जब अपना वर्डप्रेस का कंप्लीट सेटअप हो जाएगा अपने लोकल होस्ट में, तो अपने पास एक इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा. दिस काइंड ऑफ द डैशबोर्ड विल बी शो आफ्टर द कंप्लीट सेटअप. सो in the 10 class, first 10 class, we will discuss about all the part whatever is in the menu section, like user, what is the role of the user, what is tools, what is setting, what is custom field, click to chat means. और पहले 10 क्लास में हम इन सब टूल्स की बात करेंगे कि किस लिए काम आते हैं, इनका यूज क्या होता है. ठीक है, ठीक है. Okay. जैसे अपनी Sir? क्लास या So from when we'll start doing it practically, sir? I mean, how many classes would it take? देखिए इसमें क्लास की रिक्वायरमेंट की बात करें, Hmm. मीन्स आपको कह दे कि इसमें मूव ऑन करना है. मतलब बेसिकली जो कोर्स चलेगा अपना वो 3 महीने का कोर्स चलेगा, जिसमें हम कंप्लीट बात करेंगे एक फुल वर्डप्रेस डेवलपर के बारे में. एक नॉर्मल नहीं, जैसे आप बात करेंगे कि ये नहीं है कि आप केवल कस्टमाइज कर सकते हो थीम को या फिर ऐसे कुछ फंक्शनलिटी डाल दी उसमें, मतलब नॉर्मल फंक्शनलिटी डाल दो, उसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, जिसके मतलब आप मार्केट में आज के टाइम में डिमांड है. उस टाइप के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 मंथ का टाइम देना पड़ेगा उसमें. नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम कब से प्रैक्टिकल आई मीन वी विल बी डूइंग इट सर, लाइक यू विल बी कोडिंग, आई मीन टुगेदर व्हेन विल वी स्टार्ट कोडिंग? From today, like this one is first class and tomorrow will be second class. This type of class will be continued. Okay. And so okay, I just wanted to tell you one thing, sir. Is it possible for you, like while coding, could you please explain few things? Because sometimes theories we might understand, but when we do it practically, and if you then say, then I feel, I mean, we can understand concept more clear. Okay. So we will clear all the things like one by one. We will discuss into the description. जो भी ये चीज़ पढ़ेंगे हम उसको हम डिस्क्रिप्शन, मतलब एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के रूप में हम आपको उसको बताएंगे. ऐसा कुछ नहीं कि जैसे एक कंप्लीट बता दे प्लगइन्स ये होता है ऐसा इसमें कर दें ना, मतलब इसको ऐसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसमें बताएंगे कि आप प्लगइन्स को कैसे भी इंस्टॉल करें, और उसमें कोई भी आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर दें तो उसके लिए आपको पहले क्या क्या उसकी चीज़ को पता होना चाहिए कि वो प्लगइन सेफ रहेगा या फिर ऐसा कुछ. मतलब डिस्क्रिप्शन में आपका कोर्स रहेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ऊपर से ऐसा कुछ नहीं रहेगा. Okay. और कोडिंग के सेक्शन में जब बात करें तो कोडिंग के सेक्शन में हम मूव ऑन करेंगे HTML CSS PHP, तो उसमें भी हम बात करेंगे ढंग से. Okay, sir. Yeah. Thank you. और कोई डाउट हो, मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो आपके पास? सर हमें क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? इसकी आपको YouTube पे मिल सकती है, और एक साइट पे मैं जल्दी मतलब अपलोड कर दूंगा इसको, जो अपनी LMS साइट होगी उसमें आप अकाउंट बना सकते हो, उसमें आपको नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें. ओके सर, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर दिन इस टाइम पे फ्री रहे, तो नहीं हम ये तो आज रिकॉर्डिंग. के लिए टाइम है, क्योंकि आज मैं फ्री था तो उसकी वजह से आज मैंने दोपहर में क्लास ले ली थी. उसके बाद जैसे अपनी इवनिंग के टाइम आप फ्री रहोगे 8 से 9 बजे के बीच में. सर दैट इज
वो तो फ्री नहीं होंगे दैट टाइम. आई कांट अटेंड लाइव क्लासेस. सो विल आई गेट रिकॉर्डिंग्स? हाँ मतलब आपका सुटेबल टाइम क्या रहेगा, कोई मतलब सर सभी डे बताएंगे टाइम तो में आई एम सर फ्री. वॉइस नहीं आ रही आपकी। मतलब जो टाइम आपका रहेगा सुटेबल, जो आपके सुटेबल टाइम है वो आप बता सकते हो। Sir, 12 to 2 or after 3 to 6. 3 to 6. I'm free. सो एनीवन, कोई आपका Daily at what time you have your class? क्या? Evening time we can have class. 8 से 9 बजे के बीच में कोई मतलब कितने फ्री हो Sir, सकते हैं? Sir, it's not possible for sir, I me. have your class from 4 to 8 p.m. What? So we can have class around 3 to 4, sir. In the morning? In the afternoon part. In the morning, like when you will free? From 8:30 onwards, I will be having college classes. So मतलब इवनिंग टाइम पे आप कोई भी फ्री नहीं हो सकते, लाइक वी कैन से दैट आफ्टर 7 PM. After 8 p.m. it will be okay for me. Otherwise, before 4 p.m. anytime I will be okay. So afternoon part we can have 3 to 4. Yeah, sir, that is suitable time for me also. दोपहर की टाइम ये मतलब आफ्टरनून के टाइम में सेट नहीं हो पाएगा रूटीन जो रहेगा उसका. Sir, so can we get recording so that we can attend classes? या Okay, then I'll do recording session. क्योंकि आई एम ए फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड वर्डप्रेस डेवलपर, वेब डेवलपर, सो this will be not possible in the afternoon, this kind of. Sir, after 9 In the evening? or 9 to 10 in the... In the night? Like you said. Yes, sir. Yes, sir. Okay, can you join from 8:30, 8:45? Sir, I'll try. Yes. Yeah, so we can continue on the 8:30 या 9 PM. So ओके. और सो अभी तक मतलब किसी को कोई डाउट हो इसमें, कोई जो आपने पढ़ा आज? और देखिए इस कोर्स का जो मेन मोटिव है वो ये नहीं रहेगा कि आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, क्योंकि थ्योरी जो इंडस्ट्रियल लेवल में होगी थ्योरी का आपका कोई यूज नहीं होगा इसमें. ठीक है, जो प्रैक्टिकल रहेगी वही आपकी एक स्किल के रूप में काम आएगी. ओके सर. या सो इसमें देखिए या सर आज के सेशन में तो कोई डाउट नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव वन डाउट. या सर, getting good score in GT Matrix is really important for our website. Okay. So I'm asking you, is it important? Like, yeah. Okay. So the GT Matrix and the one is Google Page Speed Insight. They are the two. Yes. Types. They are the two tools from which we will determine our website speed. Like what are the errors in our website from which it can't rank on the Google, and the page speed, particular page speed is very low. और बेसिकली जो होता है ना अपना गूगल पेज स्पीड इनसाइट और GT Matrix, ये दो टर्म ऐसी होती है जिससे हम अपने पेज की जो भी अपने एरर आ रहे हैं अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेज में जितने भी एरर आ रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उनको सोल्व कर सकते हैं कि हम उसमें इस पर्टिकुलर लाइन में एरर आ रहा है तो उसमें कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, वो चीज़ होती है. जैसे आप कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो, एक दो वेबसाइट अपने पास, एक वेबसाइट आपकी जल्दी खुल रही है, दूसरी वेबसाइट आपकी टाइम ले रही है लोड होने में. तो जो टाइम ले रही है या तो उसमें अपना प्रॉपर इमेज का फॉर्मेट यूज नहीं है, इमेज प्रॉपर ही साइज नहीं है, कंप्रेस इमेज नहीं है, या फिर आपने कोई कलर फॉर्मेट यूज किया हुआ है, या फिर उसमें आपने अनयूज CSS लगा रखी है, जावास्क्रिप्ट अनयूज लगा रखी है. ये जो फंक्शनलिटी होती है इसको रिमूव करना पड़ता है जिसके कारण आपकी वेबसाइट एक बेटर परफॉर्म कर सके.
ओके सर, मैंने कुछ वेबसाइट की टेस्टिंग की थी जिनकी तो ग्रेड डी ग्रेड में भी आ रही है सर, जैसे कि नील पटेल डिजिटल की वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट का ग्रेड डी स्कोर है सर। मतलब इतनी बड़ी फॉर्म होके वो लोग अपना स्कोर पे नहीं मेंटेन कर रहे, तो फिर मेरे को ये क्वेश्चन आया था। देखिए बेसिकली इसमें फ्लिपकार्ट की जब आप चेक करोगे तो फ्लिपकार्ट की भी अपनी 39 की है गूगल पेज स्प्रेडिंग साइट में। जब आप फ्लिपकार्ट की चेक करोगे गूगल पेज स्प्रेडिंग साइट में तो आपकी 39 में 40 है आपकी। तो इसमें मतलब आपको एक इंस्ट्रक्शन देती है कि गूगल में पर्टिकुलर है उसमें आप कितनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो उसकी मदद से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एसईओ रैंकिंग डाउन होगी, मतलब उसमें यूजर का इंटरेक्शन रहेगा कि आपकी कोई यूजर आ रहा है साइट पे, टाइम ज़्यादा ले रही है वो साइट लॉड होने के लिए, तो उसमें वो सिंपल सी बात है कि वो यूजर आपकी साइट को छोड़ के जाएगा। वो हम बात करेंगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। ओके सर, तो हम सारे जो भी इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे ना इस कोर्स में? हाँ ओके सर। जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। हाँ सर, क्योंकि टॉप वेबसाइट्स में ये इशू आ रहा है तो मेरे को लगा कि ये सच में इतना इम्पोर्टेंट है या फिर हम इजिली वर्डप्रेस पे क्रिएट करके बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। अब देखिए जो अपना मेन पोर्शन होता है वो हम यही कर सकते हैं कि इसमें कैसे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकें। ठीक है ओके तो उसमें मेन बात ये है, एक मिनट। इसके लिए अपने कई प्लगइन्स आते हैं, जैसे अपना हैमिंग बर्ड हो गया, उसमें मतलब आप दिखा सकते हो कोई भी आपने मल्टीपल प्लगइन्स लगाए हुए उसमें, तो मल्टीपल प्लगइन्स कोई भी प्लगइन्स ऐसा होता है जिसका दूसरे पेज पे यूज नहीं है उसको उससे हटा सकते हो आप। So I'm showing you an example instrument. Pooja, can you please turn off your audio? Thank you. This is our page speed insight, from which we will determine our website speed. Sir, are you sharing a screen? Yeah. It is not visible to you. Sir, no sir, I think again I have to leave and come back. Sir, just a minute, I'm coming. Can you start? Yes sir. So इसमें देखिए ये अपनी पेज स्पीड इंसाइट है, इसका मतलब पहले क्या था, मैंने कम से कम 6 मंथ हो गए इसके, 6 मंथ या 7 मंथ हो गए इसके एचयू करे हुए, मतलब पेज स्पीड इंसाइट पे काम किया था। और उसका जो पेज स्पीड इंसाइट होता है उसको आपको हर 3 महीने में या फिर हर 2 महीने में उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो इसका मैंने पहले किया था, इसको 99 के स्कोर था उस टाइम 6 मंथ पहले। इसमें यहाँ से आप मोबाइल पे इसका स्कोर चेक कर सकते हैं, 63 है, यहाँ पे इसका 88 है। तो ये पहले अप्रोक्स 95 या 99 था इसका। इसमें देखिए सबसे पहले एरर क्या क्या आ रहा है आपकी अपॉर्चुनिटी, इसमें मतलब दिखाएगा कि इसमें डेट कैन हेल्प योर पेज लॉड फास्टर, यानी जो आपका पेज है वो कितनी तेज से आप जो पेज है वो आपका जल्दी खुल सकता है, ओपन जल्दी हो सकता है यदि आप इन दो चीज़ को आप कर लेते हो चेंज। पहला था प्रॉपर साइज इमेज, जो आप इसमें इमेज डालते हो और उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है कि आप इतने केबी में डाल सकते हो, उसका इतने में डाल सकते हो, वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। और इनको कंप्रेस करने के लिए भी वेरियस प्लगइन्स आते हैं इमेज को कंप्रेस करने के लिए। फिर अपना रिमूव अनयूज CSS और जावास्क्रिप्ट आती है, ये अपनी मतलब दिस काइंड ऑफ द एरर है, इनको हम रिजोल्व करेंगे वन बाय वन सभी को। ये पासवर्ड दिखाएगा, जो अपना मतलब पासवर्ड जो है इसमें जो आपने सही कर लिया इसमें, ये सब कुछ आपको दिखाएगा इस पर। ठीक है, और एक जीटीमैटिक्स भी अपना होता है, उसमें भी अपना सेम फैसिलिटी होती है, इसमें हम मतलब डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्या चीज़ इसमें होगी। ओके ऑल दैट्स हो गया।
हेलो सर अगेन रिपीट। अब बेसिकली जो पेज स्पीड इनसाइड होता है वो अपने वेबसाइट के पेज की स्पीड ही को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वेबसाइट का पेज कितनी जल्दी लोड हो रहा है, यानी कल ओपन हो रहा है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें जो उसमें एरर आते हैं उसको रिमूव करना पड़ता है। ओके ओके तो हम उसको जैसे हम अपनी वेब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ओवरव्यू हो जाएंगे, प्लगइन से ओवरव्यू हो जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पेज स्पीड इनसाइड की। ठीक है ओके सर। तो एक अपना सिलेबस की बात है, इसमें सिलेबस क्या क्या पढ़ेंगे, राइट? यस सर। तो देखिए सिलेबस में बात करें तो कल जो क्लास रहेगी उसमें अपनी लोकल होस्ट में आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें और क्या क्या आप एरर फेस कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे अपना कंप्लीट क्लास हो जाएगी वो, उसके बाद हम बात करेंगे डैशबोर्ड के बारे में, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है इसमें। ठीक है, जैसे हो जाएगा फिर उसमें जो एक पर्टिकुलर वर्डप्रेस की थीम होती है, प्लगइन्स होते हैं और उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो वो बात करेंगे। लेकिन जो थीम और प्लगइन्स से पहले हम बात करेंगे कि पेज बिल्डर क्या होते हैं अपने, उससे हम कैसे अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर। सर हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, am I audible? I wanted to ask questions regarding digital marketing. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो देखिए इससे पहले हम बात करेंगे कि हाँ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। हाँ सर, हाँ सर। सो इसमें हम बात करेंगे कि आप जैसे जो अपनी थीम होती है उसमें आप कस्टम थीम कैसे बनाएंगे, इसका कोड होता है अपना। देखिए प्लेस में जाएंगे, जैसे आप थीम एडिटर में जाएंगे तो एक कोड कैसे लिखा जाता है, फंक्शन कैसे कॉल कर सकते हो, सभी बात करेंगे मतलब इसमें जो आने वाला ट्यूटोरियल रहेगा ना उसमें। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। जस्ट ए मिनट। मतलब यही है कि आने वाले सेक्शन में हम कंप्लीट बात करेंगे। थीम डेवलपमेंट का पोर्शन रहेगा, अपना प्लगइन्स डेवलपमेंट का पोर्शन रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें पेज स्पीड के ऊपर कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, दिस काइंड ऑफ। ओके सर। या योस्ट एसईओ। सो कोई क्वेश्चन हो आपका? कोई क्वेश्चन हो आपको जो सर पूछना चाहते हैं? सर एक पर्सन का रैंडमली मैसेज आया, तो वो कहता मुझे अपनी साइट का एसईओ कराना है और उसे पता है कि मैं वेबसाइट वगैरह बनाता हूँ, बट एसईओ का मुझे नॉलेज नहीं है। काफी बेसिक नॉलेज है, ज्यादा कुछ एसईओ के बारे में नहीं पता कैसे करते हैं टेक्निकल एसईओ। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो उसके एसईओ के लिए क्या कहूँ। वो कह रहा है कि मुझे अपने फ्रेंड की एसईओ करानी है साइट का। ओके, हाँ मतलब आपको नॉलेज नहीं है। हेलो, अरे भाई माइक बंद कर लो। और भाई पर्सनल पे बात कर सकते हैं, मैसेज डाल देना पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूँगा।
जी सर, जी सर। Yeah. So we can say सर बेसिकली थोड़ा सा अपने बता दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था, बाहर गया था, अभी घर आया हूँ मैं तो देखा कि आपका सेशन चालू था। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। okay. So why firstly I will talk like I am a web developer, WordPress developer, and a software developer from the last 2 years as a freelancer in the industry level, and we can say that I have an experience totally 5 to 6 years. Okay, so this is our website is BookTech Services. BookTech Services के नाम से अपनी वेबसाइट है, उसमें आप जाके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या है। मतलब फ्रीलांसिंग एक जितनी भी अपनी एसईओ की सर्विस होगी, वेबसाइट डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस डेवलपमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, और जितने भी अपनी फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, कंटेंट राइटिंग, मतलब सभी सर्विस आपके यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कोई सी भी सर्विस आप यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरी में बात करें कि इसमें 2 साल इंडस्ट्री में काम किया था अपनी रिचेंट एज नाम से, अपने यहाँ पे लोकल हरियाणा में। और उसके बाद मैं बात करूँ 2 साल मेरे को फ्रीलांसर करते होंगे, मतलब एज ए पार्ट टाइम मैंने शुरू में किया था। पहले 2 साल पार्ट टाइम पे किया था, लेकिन उसके 2 साल बाद एक फुल टाइम फ्रीलांसर के रूप में हूँ मैं। ओके, आप बाद में हमको ये भी बताइए कि मतलब हम भी अपना थोड़ा सा फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बिगनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता एचटीएमएल में काम कैसे करना है, और हमको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। क्योंकि मैं अभी स्टडी भी कर रहा हूँ, तो फाइनल ईयर में हूँ, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है कि कहाँ से क्लाइंट वगैरह मिलेगा। 22 में देखिए सेशन होता है एक कंप्लीट, इसका सेक्शन रख लेंगे यदि आपकी डिमांड होगी तो। इसमें वैसे कुछ है नहीं, लेकिन अभी जो इस क्लास को 1 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटे से शायद ऊपर हो चुका है इस क्लास को, 1 आवर से 1 आवर 15 या 20 मिनट हो चुके हैं इस क्लास को। सो इसके एक सेशन रख लेंगे, सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे कैसे आप क्लाइंट्स को एक्वायर करें और कैसे कहाँ से उसका सोर्स हो सकता है। उसमें कंप्लीट बात करेंगे, मतलब उसमें कैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो उस कोर्स को करने के बाद। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, मतलब आपको यहाँ तक कोई डाउट हो, आपके पास कोई डाउट हो पूछना चाहते हो आप? सर मैं ही पूछ रही हूँ सर, जैसे आप हमको सिखाएंगे तो इसमें आप एलिमेंटर यूज करके बताएंगे या डायरेक्ट? देखिए इसमें हर चीज़ का यूज होता है। थीम का केवल इतना होता है कि आप उस थीम को यूज कर सकते हो किसी भी मोबाइल डिवाइस को रेस्पॉन्सिव के लिए, मोबाइल डिवाइस टैबलेट के लिए या फिर अपना डेस्कटॉप के लिए आप रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। लेकिन जब उसका पेज क्रिएट करना आपको, तो उसके लिए आपको तो एलिमेंटर और नेसेसिटी पड़ेगी उसकी। अपने एलिमेंटर की बात करेंगे, WP बेकरी, उसके कुछ एड-ऑन्स, सब कुछ बात करेंगे इसमें। क्योंकि सर मैंने जो वेबसाइट्स बनाई है मैंने एलिमेंटर यूज करके बनाई है। हाँ, और जो वो सिंपल एडिटिंग करके बनाते हैं वो नहीं पता। वो थीम डेवलपमेंट का पोर्शन आता है, उसमें हम बात करेंगे। जैसे अपना पेज बिल्डर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद थीम डेवलपमेंट और प्लगइन्स डेवलपमेंट के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ओके सर। तो आप में से मतलब जितने भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि मतलब कह सकते हैं मैसेज वैसे ही आ रहे हैं उल्टे सुल्टे, प्रॉपर मैसेज नहीं आ रहे उस ग्रुप में अभी फिलहाल के लिए। तो जो भी इस कोर्स में कंटिन्यू करना चाहता है एक बार मैसेज पर्सनली कर सकता है, मैं उसके लिए एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर दूंगा उनका। यस सर। ठीक, क्योंकि इसमें मैसेज तो वैसे आ नहीं रहे हैं जैसे एक्सपेक्ट थी। ओके सर। सो कोई क्वेश्चन हो आप किसी का, फिर हम क्लास को लीव कर सकते हैं। सर आज जो रिकॉर्डिंग रहेगी सर आज की दे दीजिएगा, और सर अभी मेरे 2 दिन बाद एग्जाम चालू हो रहा है, तो वो 2 बजे से रहेंगे, तो मैं 5-6 दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा बीच में। भाई क्लास की मैं बात करूँ तो इतनी नाइट में क्लास रहेगी अपनी 8 या 8:30 के बाद क्लास रहेगी। तो ठीक है सर, तो ठीक है। मतलब आप एक बार टाइम का शेड्यूल कर लेना, उस हिसाब से हम देख लेंगे जो प्रॉपर टाइम से फिक्स रहेगा। हाँ सर 8 बजे रख लीजिए, 8:30 बजे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 साढ़े 8 बजे, मतलब 8 बजे रख लीजिए, 8:30 बजे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8:30 से 10 कर लीजिए।
हाँ उसमें देख लेंगे इसको बाद में। एक बार मतलब आप हाँ मतलब डिस्कस कर लो सारे ग्रुप में, एक बार टाइमिंग आप अपनी अपनी बता दो जिस टाइम आप फ्री रहोगे। लेकिन जो हम मेन मोटिव है वो हमारा 8 के बाद है, जी सर, जी मतलब सर। 8 के बाद ही रहेगा हाँ शाम मतलब को। 10-15 लोग भी हाँ 8 बजे से स्टार्ट कर, मतलब 8 बजे के बाद फ्री है, 8 साढ़े 8 9 बजे ठीक है। फ्री है। और मतलब बेसिकली ये है कि जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो सीरियस लोग हैं, और क्या कहते हैं सबके हाँ भाई उसी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रुप में मैं भी देखिए कंटेंट भी शेयर करना आपको, तो कॉज उसमें हाँ वो मतलब डिस्टर्बेंस मैसेज आएंगे तो वो अलाउड नहीं रहेंगे उसमें, वो मतलब समझ रहे हो आप, उसमें मन नहीं करेगा उसको काम करने के लिए। और हाँ सर, मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि जो लोग मतलब रेगुलरली आएंगे उन लोगों का अलग ग्रुप बना दीजिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी तो इतने सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी आप जो भेजेंगे या हम लोग जो भेजेंगे तो उसमें चीजें मिस हो जाएंगी। बहुत सारे मैसेज आते हैं ना तो वो उसी वाले के लिए ग्रुप में, कह रहा हूँ मेन भाई, ग्रुप मैंने ग्रुप में मतलब मेरे पास एक पर्सनल मैसेज डाल देना जो जो आप कॉर्स को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए एक जी सेपरेट ग्रुप बना दूंगा नॉर्मल, मतलब जो भी अपने रहेंगे पीपल उसके लिए। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू कैन डू।